प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने गुडविल का जितने सारे वैल्यूएशन के मेथड्स प्रोसीजर थे उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशंस किया था। आई टोल्ड यू बच्चों द फोर बेसिक मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, among them the first one arbitrary assessment which is fully dependent on the judgment or the personal information of the buyers or the creditors या suppliers बच्चों, and to which other gives their same consent. That is where बच्चों that method is not basically used in the valuation of goodwill. Then I told you about the practical method that I am going to teach you now बच्चों, पढ़ाने जा रहा हूं आज अभी। उनमें से सबसे पहला था बच्चों कैपिटलाइजेशन मेथड, the third one, second था कैपिटलाइजेशन, third one बच्चों purchase of past average profit method, and finally is your super profit method. So there are four methods of valuation of goodwill: arbitrary assessment, capitalization profit method, purchase of past average profit method, and finally बच्चों super profit method. Every method बच्चों अपनी अपनी जगह पे सभी मेथड ठीक हैं एंड सभी का कुछ ना कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स है। That's why उसके बाद दूसरे मेथड डेवलप होते गए। Finally, I told you in the last class बच्चों the basic and the appropriate method of calculation of goodwill is the super profit method, where the company, the farm, the businessman, the business house, जो भी हो, in that case बच्चों goodwill is not calculated on the basis of the entire profit of the farm or the company. There we have to बच्चों give our attention on that particular point बच्चों, to which extent, to what extent a person will gain if he or she will start his business with that particular XY, and if he will start his business with A B C D E F G H I जो भी हो बच्चों, उसे कितना नॉर्मल रिटर्न मिलता है। But at the same time, if he will start his business with the X or Y, he will earn more than if he start business by himself or with other person. So but the difference between the profit of his own effort or the profit with the other person A to जो भी हो सकते हैं बच्चों, and the profit with बच्चों X or Y, suppose X Y भी नहीं है, so if I start my business with X, definitely I will earn बच्चों more than if I will start business on my own effort या with outsiders effort. The profit with the X is definitely बच्चों more than अगर other से हो रहा है, that means X possesses certain goodwill and X is completely बच्चों entitled to get certain amount for goodwill, certain premium for goodwill. If I purchase business from X, if I am going to purchase business from X, in that case X also entitled to collect goodwill from me, because not only I purchase his business by paying capital, but also immediately after starting the business I will enjoy his dedication, his commitment, his hard work, his commitment, his long periods of experience that for which he created a good reputation in the market, and today he is in that position of being able to earn more than that nobody, in fact maybe or कोई भी बच्चों is nobody is able to earn current period में कोई भी उतना profit नहीं पा सकता. So this is only goodwill. But we have to consider now बच्चों, हम लोग अगर बिजनेस करते हैं कितना पाते हैं, उसके साथ बिजनेस करने से हमें कितना फायदा होता है. So that extra amount is known as super profit, and previously in the purchase of past average profit method or capitalization profit method, we calculate the goodwill on the basis of बच्चों the average profit or the maintainable future profit. That means the exact उनका profit लिया जाता था, total profit. But while I discussed with you the super profit method, I completely told you to find out the goodwill, we have to consider the excess profit. What exactly the profit and what exactly the profit if I will start business with X. So if starting business with X, buying the business of X gives us certain extra profit as compared to other one, जब मैं खुद भी करता हूँ, that extra profit, that excess profit, that over profit is known as goodwill. And finally, that is why the most basic, the more perfect method of calculation of goodwill is the calculation of goodwill
all about the first four method. Today I am going to start the practical problem from your book. लगभग बच्चों 17 problems are there and मैं कोशिश करूंगा लगभग करवाऊंगा और जो नहीं करवाऊंगा आप लोग खुद करोगे. So let's move to the board. बच्चों देरी नहीं करेंगे, चलो. So बच्चों आपको मैंने ग्रुप में देखो सभी स्टूडेंट्स, बच्चों आप लोगों को मैंने ग्रुप में क्वेश्चन सेंड कर दिए हैं और मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखने वाला नहीं हूं. सो आप उस क्वेश्चन को पढ़ें, समझे मेरे साथ, एंड देन वी स्टार्ट द प्रॉब्लम. गो फॉर द सॉल्यूशन बच्चों उसके बाद. ओके, देन वी गो फॉर द सॉल्यूशन. तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन इज योर परचेज ऑफ पास्ट एवरेज प्रॉफिट्स. बच्चों परचेज ऑफ पास्ट एवरेज प्रॉफिट, एंड आई टोल्ड यू बच्चों परचेज ऑफ पास्ट एवरेज प्रॉफिट में योर गुडविल, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं. गुडविल इज इक्वल टू बच्चों एवरेज प्रॉफिट आपका जो होगा एवरेज प्रॉफिट जो होगा बच्चों इनटू आपका होगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. बस इतना, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. एंड अगर बच्चों इफ देयर इज एनी एडजस्टमेंट देन दिस एवरेज प्रॉफिट कैन आल्सो बी नोन एज बच्चों मेंटेनेबल फ्यूचर प्रॉफिट. बोथ आर सेम, मेंटेनेबल फ्यूचर प्रॉफिट. सो यू कैन कंसीडर बच्चों एवरेज प्रॉफिट if there is no adjustment, and if there is adjustment you consider bachcho maintainable future profit. So first one bachcho, the very simple, you need to calculate average profit or maintainable future profit, then by multiplying the average or maintainable future profit with the number of years purchase you can find out the amount of goodwill. That is your answer. जो होगा, जो आपका होता है क्या बच्चों आंसर. So let's start बच्चों the question number 1. Look at the question students. बच्चों this is a question about three partners, namely X, Y and Z. Look at the question carefully. X, Y, Z are partners बच्चों sharing profits and losses. X, Y and Z. Question number 1. X, Y and Z are three partners बच्चों sharing their profits and losses in the ratio of 2/5. 2/5 and Z बच्चों is your 1/5. That is 2:2:1. 2 plus 2 plus 1 is equal to 5. Okay, so out of total profit of 5, X बच्चों takes 2, Y takes also 2, and Z's part बच्चों वो 1. So this is the profit sharing ratio among the X, Y and Z. Okay, so it was provided in the partnership agreement that on the death or retirement of a partner, उनके एग्रीमेंट में बच्चों लिखा है किसी भी प्रकार का अगर डेथ होता है, कोई भी अगर डेथ होता है या बच्चों रिटायरमेंट होता है तो क्या होगा, डेथ और रिटायरमेंट होता है तो एट दैट केस में गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 इयर्स. बच्चों गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 इयर्स. बच्चों परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट 4 ईयर परचेज. बच्चों नंबर ऑफ ईयर परचेज गुडविल उसको 4 साल का कैलकुलेट किया जाएगा. ओके, नेक्स्ट बच्चों दिया है वहां पे. सो गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज नेट प्रॉफिट्स फॉर द प्रीसीडिंग 7 इयर्स. बच्चों पहले 7 साल के प्रॉफिट से निकाला जाएगा एंड 4 साल का प्रॉफिट दिया जाएगा. मतलब क्वेश्चन में 7 साल का प्रॉफिट होगा. Z retires on 30th June. बच्चों Z X Y Z में से Z बच्चों क्या हुआ, रिटायर हो गया on 30th June. यहाँ देरी कोई जरूरत नहीं है. And calculate the बच्चों amount of goodwill. We need to calculate the amount of goodwill due to Z. कितना Z को हमें देना है, Z कितना पैसा लेके यहां से जाएगा. नेट प्रॉफिट्स फॉर द 7 इयर्स. बच्चों लास्ट 7 इयर्स का जो आपका प्रॉफिट है यहां पे लिखा हुआ है 2010, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. So in question बच्चों we have provided, we are given बच्चों we have given the last 7 years profit. आपका 7 years profit से बच्चों गुडविल के लिए जो निकालना है आपको मालूम है एवरेज प्रॉफिट निकालना है और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया तो फाइनली एवरेज प्रॉफिट ही निकलेगा.
देन बच्चों 4 साल का गुडविल इसको देना है जेड को। सो दिस इज द क्वेश्चन बच्चों। सो लेट्स मूव टू द बच्चों सॉल्यूशन। केयरफुली सभी स्टूडेंट देखें। सॉल्यूशन बच्चों, as we know, as I told you बच्चों, in every valuation certain steps, so you may follow बच्चों the steps, you will get the answer, otherwise you can solve the problem on the basis of your own knowledge. So if you follow this step, I think you will get your answer very easily and there will be no problem. So बच्चों the first question is बच्चों calculation of goodwill. Calculation of बच्चों goodwill on the basis of बच्चों past average profit method. This is the बच्चों method, past average profit method. You need to calculate goodwill on the basis of past average profit method. Okay students, so हमें कुछ steps follow करने हैं। As you know बच्चों, steps मैं डायरी यहां लिखता हूं steps। ओके, तो स्टेप नंबर बच्चों 1, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या था? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बच्चों, एवरेज प्रॉफिट कितना है? क्वेश्चन में बच्चों गिवन है 7 इयर्स का प्रॉफिट फ्रॉम द ईयर 2010 से लेके 2016 तक। सो बच्चों वी नो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू बच्चों टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय बच्चों नंबर ऑफ इयर्स, नॉट द नंबर ऑफ इयर्स परचेज। यहां पे आपका नंबर ऑफ इयर्स है, परचेज नहीं है। ओके बच्चों, यहां पे जो आपका एवरेज प्रॉफिट निकलेगा दैट इज टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। ओके, सो लुक एट द क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2010? 32,000। देन टोटल प्रॉफिट सेकंड 11 में 40,000, 12 में 72,000, 13 में 64,000, 14 में बच्चों 32,000, 15 में 80,000 एंड फाइनली बच्चों 16 में 72,000। So this is बच्चों your 7 years last 7 years profit. Okay, so what is the total profit? The sum of all the 7 years profits divided by number of years. How many years? 1 2 3 4 5 6 and 7. So by dividing बच्चों 7 years from the total profit you can get the average profit. So add these figures बच्चों 0 3 3 3 3 3 3 3 zeros बच्चों. So 0 0 0. Now you can add 2 to 4 for 8 to 10 10 to 12 बच्चों 2 1 3 1 4 for 8 7 15 6 21 24 32 and 7 बच्चों 39. So that is your 3,92,000 divided by 7. Divide the 7 number of years from the total profits of the 7 years बच्चों, we will get the average profit. So divide it बच्चों, आप लोग यहाँ पे क्रॉस मार्क नहीं देना। So 7 5 is 35, 4 2 बच्चों 7 6 is 42. So this is your 56,000. Your average profit. This is your बच्चों years. So your average profit is equal to 56,000. Okay बच्चों, average profit निकला 56,000. This is your step 1. And we know बच्चों step 2 maintainable future profit या goodwill if there is any adjustment, and as no adjustment is given in the question, you can directly move to the final step, that is the calculation of goodwill. Now
कैलकुलेट गुडविल डायरेक्टली बच्चों, कैलकुलेट गुडविल, कैलकुलेट गुडविल ऑफ दी, बच्चों यहां मैं लिख रहा हूं फार्म, बच्चों फार्म का गुडविल, XYZ फार्म का गुडविल। यू नो बच्चों व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गुडविल? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट और मेंटेनेबल फ्यूचर प्रॉफिट, पर यहां तो कोई अर्थ नहीं है, इनटू बच्चों नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है, यहां पे कितने साल का उसे गुडविल वो लेके जाएगा, या रिटायर हो रहा है। Since here बच्चों Z is retired from the farm, Z is retired and we have बच्चों लिखा है जब रिटायर्ड होगा या कोई डेथ हो जाएगा तो उसको, उसकी फैमिली को कितने साल का गुडविल मिलेगा बच्चों? 4 साल का। यहाँ पे 4 इयर्स लिखा है क्वेश्चन में। बच्चों गलती से मिस्टेक मत करना, ये 7 इयर्स इज द पर्पस ऑफ, इसका पर्पस है, इट्स पर्पस इज टू कैलकुलेट बच्चों एवरेज प्रॉफिट। These 7 years shall be taken into account for the calculation of बच्चों average profit or maintainable future profit. But this बच्चों 4 year 3 year it is just for the calculation of goodwill, that कितने साल का गुडविल वो यहाँ से लेके जाएगा। So this is बच्चों 4 and your average profit is बच्चों ₹56,000. So by multiplying बच्चों 56,000 into 4 you will get 4 into 6 बच्चों 24, 4 2 4 5 20 22. This will be your बच्चों 2,24,000. The amount of goodwill of the farm बच्चों 2,24,000. So definitely आपका आंसर होना चाहिए goodwill of the farm 2,24,000. But बच्चों the question is, आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों? क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट दी जेड को कितना पैसा देना है, जेड कितना पैसा लेके फार्म से जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सो जेड का गुडविल कैसे निकलेगा? तो फाइनली हम लिखते हैं यहां पे हेंस द अमाउंट ऑफ गुडविल ड्यू टू जेड, बच्चों जेड को जो दिया जाएगा अमाउंट ऑफ गुडविल ड्यू टू जेड इन बच्चों इन द रेशियो ऑफ, इतना नहीं लिखोगे चलेगा, डायरेक्ट निकाल दोगे आंसर, पर इन द रेशियो बच्चों 1/5, दैट इज बच्चों द गुडविल ऑफ द फार्म इज इक्वल टू 2,24,000 एंड बच्चों जेड शेयर इज इक्वल टू 1/5 डिवाइडेड बाय 5. सो यू विल गेट बच्चों, डिवाइड करो 5 4 जा 20, 2 4 बच्चों 5 4 जा 20, देन 4 0 5 8 जा 40 00 44,800. Look at the answer बच्चों in your book. The book में आंसर क्या लिखा है? 44,800. बच्चों this is the amount of the goodwill that will be provided to बच्चों G on his retirement. And बच्चों this goodwill is calculate कैसे निकला? पहले तो हम लोगों ने X Y Z तो तीनों का goodwill निकाला, that is equal to बच्चों 2,24,000. तीनों का गुडविल अगर 4 साल का निकाला जाए एंड इनके अंदर से बचत जेड का लिए है 1/5, सो जेड्स को कितना दिया जाएगा? 2,24,000 into 1/5 that is equal to 44,800. क्लियर बच्चों? तो वेरी सिंपल. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई सॉल्व्ड बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एवरेज. सभी इसको ध्यान से लिखें. देन मूव टू द बच्चों सेकंड क्वेश्चन. हो गया बच्चों? तो अब इरेज करता हूं. तो क्वेश्चन नंबर 2, तो तब तक क्वेश्चन को एक बार पढ़ें बच्चों. यहां पे लगभग आपके 15 16 या कितने 17 प्रॉब्लम हैं. फर्स्ट 1-2 प्रॉब्लम के बाद आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम निकलेंगे जहां पे आपको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा. नॉट ओनली यू कैन फॉलो, आप फॉलो नहीं कर सकते, बस फॉर्मूला स्टेप्स फॉलो करके आप नहीं सॉल्व कर पाओगे. वहां पे आपको आपका कॉमन सेंस एंड कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आप गुडविल नहीं निकाल पाओगे.
सो बच्चों मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. Look at the book बच्चों. The question number 2 बच्चों, it is again बच्चों purchase of average profit. The same question बच्चों. Here the question में यहीं पे भी फिर से दिया है बच्चों, purchase of average profit. Purchase of average profit. पहले एक दो क्वेश्चन आपके सेम है, देन क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे. सो प्रॉपर्ली केयरफुली ध्यान से दो बच्चों, ध्यान दो. एंड आपको मैं बहुत सारी चीजें इसमें बताऊंगा. परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट. सो लुक एट द क्वेश्चन बच्चों. मोहन एंड कंपनी डिसाइडेड टू परचेज ए बिजनेस फॉर ₹80,000. बच्चों द ओनर ऑफ द कंपनी बच्चों मोहन एंड कंपनी. बच्चों इन दोनों ने डिसाइड किया एक बिजनेस को खरीदने का. उसका प्राइस है बच्चों 80,000. द प्राइस ऑफ द बिजनेस बच्चों 80,000. इस प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 इयर्स. बच्चों लास्ट 4 साल का प्रॉफिट दिया है 2013, 14, 15 एंड 16. हम जिस बिजनेस को खरीदने जा रहे हैं उसका प्राइस है 80,000. ओके, द प्राइस ऑफ द बिजनेस बच्चों 80,000. Not the goodwill, it is the price of the business. कितना पैसा तुम दोगे बिजनेस के लिए? 80,000. इन क्वेश्चन बच्चों उसी बिजनेस का जिसको आप खरीदने जा रहे हो 80,000 में, उसका लास्ट 4 इयर्स का बच्चों प्रॉफिट दिया हुआ है. एंड लास्ट 4 ईयर का जो प्रॉफिट है बच्चों 13, 14, 15 एंड 16 में दिया है. द बिजनेस वाज लुक्ड आफ्टर बाय द मैनेजमेंट. उस बिजनेस को जिसको हम खरीदने जा रहे हैं, ये दोनों खरीदेंगे इस बिजनेस को. इसका प्राइस 80,000. इस बिजनेस को मैनेज करता था बच्चों मैनेजमेंट. कौन मैनेज करता? मैनेजमेंट. एंड उसके लिए रेम्यूनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, मैनेजमेंट का जो रेम्यूनरेशन था उनके काम के लिए, दैट इज था बच्चों 3,000 पर एनम. उनका रेम्यूनरेशन था. तो यहां पे एडजस्टमेंट दिया है. रेम्यूनरेशन बच्चों 3,000 पर एनम. Okay बच्चों, we are going to purchase Mohan and company is going to purchase a business worth 80,000 where profit is 4 years का दिया है and वहां पे remuneration कितना है 3,000. Find out the amount of goodwill if it is valued on the basis of 3 years purchase. हमें goodwill निकालना है बच्चों 3 years purchase का. Goodwill on the basis of 3 years purchase. ये ईयर एंड ये ईयर बच्चों डिफरेंट है. दिस इज द ईयर, दिस इज एन ईयर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एंड दिस ईयर इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. सो फाइंड आउट द गुडविल बच्चों इफ इट इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट. दिया है वो भी एवरेज प्रॉफिट ही है. ओके बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन. सो स्टार्ट करें सॉल्यूशन. बच्चों the following steps are followed. डायरेक्ट स्टेप्स लिखता हूं यहां पे मैं आपके सामने. स्टेप्स 1 बच्चों कैलकुलेशन ऑफ, केयरफुली यहां पे मैं आपको एक तरीके से मैथ करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में और अलग तरीके से मैथ करूंगा. आपको दोनों चीजों को ऑब्जर्व करना है एंड केयरफुली देखना है. कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, या बच्चों मैं डायरेक्टली मेंटेनेबल फ्यूचर प्रॉफिट भी निकाल सकता हूं. इस चीज को आपको देखना है, नहीं तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझे बोलेंगे सर कब एवरेज प्रॉफिट निकालें, कब मेंटेनेबल फ्यूचर प्रॉफिट निकालें, ऐसा. तो आपको ध्यान देना है बच्चों. पहली बात आपको मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार दिखाता हूं. यहां पे क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट दिया है 2000, आपका 13, 14, 15 एंड 16. बच्चों यहां का प्रॉफिट है 20,000, 25,000, 24,000 एंड बच्चों 23,000. तो 4 इयर्स का बच्चों हमें प्रॉफिट दिया है. एंड बच्चों दिस बिजनेस इज मैनेज्ड बाय मैनेजमेंट. इसे कौन मैनेज करता है? मैनेजमेंट. उनका पर एनम बच्चों सैलरी कितना है? 3,000. सो इफ वी शैल डिडक्ट दिस 3,000 बच्चों फ्रॉम 2013, ध्यान से देखो, if we shall deduct 3,000 from 13, 3,000 from 14,
then from 15, then from 16. Then we can get the bachcha profit of 13, 14, 15 and 16. And you can solve the problem. This is one of the way of calculation of goodwill. You can deduct this amount of remuneration per annum from the profit of 13, 14, 15 and 16. So बच्चों यहाँ पे हम 3000 को हर एक साल से माइनस कर सकते हैं, या फाइनली बच्चों 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल के, 4 साल का एवरेज प्रॉफिट तो 1 साल का ही होगा ना, उसी 1 साल से बच्चों एट ए टाइम 3000 माइनस कर सकते हैं। दोनों सेम होगा। जो मैं आपको बोलने जा रहा था कि आज बच्चों मैं ऐसा कर रहा हूँ, कल का जो प्रॉब्लम अलग तरीके का होगा, वो डिफरेंस बच्चों ये है। अब अगर आप फिर से पूछेंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ। सपोज बच्चों यहाँ पे रेमुनरेशन होता 13 में 3000, 14 में 4000, 15 में 4500 या 16 में डिफरेंट सम्स होता, तो आपको बच्चों मजबूरन यहाँ पे 20,000 माइनस 3,000, 25,000 माइनस बच्चों 3,500 या 4,000, 24,000 माइनस बच्चों 5,000. So if your remuneration is given in different sums, so you must calculate every year profit बच्चों by deducting the amount of remuneration. Since here बच्चों remuneration बच्चों आपका 3,000 पर एनम है, अगर आप इंडिविजुअली माइनस करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर 2013, then 14, then 15, then 16, बच्चों रिजल्ट विल बी सेम. सो इसमें आप डाउट मत करना, आप चाहे हर साल माइनस कर सकते हो, यहाँ पे नहीं कर सकते, पर जहां पे डिफरेंट अमाउंट होगा यू नीड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर. तो वहां पे बच्चों जो निकलेगा वो डायरेक्ट मेंटेनेबल फ्यूचर प्रॉफिट होगा या उसको एवरेज प्रॉफिट. सो एवरेज और मेंटेनेबल में कुछ फर्क नहीं है, बुक्स में बच्चों मेंटेनेबल नाम भी यूज नहीं है. क्लियर स्टूडेंट्स? सो बच्चों कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एज पर एज द क्वेश्चन बच्चों वी नो एवरेज प्रॉफिट is equal total profit by number of years. But the total profit for the year 2013 total around 20,000, then 25,000, 24,000, then 23,000 without deducting the amount of remuneration divided by 4 years. This is your बच्चों amount of profits. The sum of this for बच्चों 0 0 0 5 4 9 3 12 2 1 2 to 4 to 6 to 8 1 9 92,000 divided by 4 years is equal to बच्चों 23,000. Your average profit बच्चों 23,000. Now the second step, calculation of MF profit. बच्चों अगर आप लोग पहले से ही बिगनिंग से ही अगर आप माइनस कर देते 3,000 तो आपका यही आंसर हो जाता आपको. सो ओके बच्चों वी नो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू बच्चों यहां तो एक ही अमाउंट है 23,000 माइनस बच्चों क्या होगा यहां पे रेम्युनरेशन आपका है 3,000. So this will be your बच्चों आपका हो रहा है 20,000. तो what is your maintainable future profit 20,000. और अगर आप लोग बच्चों इसको माइनस भी करते तो सेम रिजल्ट आपको मिलता. ये आपका होता 17,000. देखो ध्यान से, ये आपका होता है 22,000, ये होता है 21,000, ये होता है आपका 20,000. एंड टोटल बच्चों 7 to 9 1 10 0 1 2 to 4 to 6 1 7 1 8 20,000 होता. तो मतलब 80,000 टोटल हो 80,000. तो यहां लिखते हैं आप लोग 80,000 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल 20. यहां पे आपका 23 निकला, हमने यहां 3 माइनस किया एंड फाइनली मिला 20. डायरेक्टली आपको मिलता 20, यहां पे आपको दो स्टेप में मिला 20. तो आपको मैंने दोनों चीज बता दिया. सो योर मेंटेनेबल फ्यूचर प्रॉफिट इज इक्वल 20,000. नाउ बच्चों द थर्ड स्टेप बच्चों इज द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. कौन से मेथड में हमें निकालना है? परचेज ऑफ पास्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड में. थर्ड स्टेप कैलकुलेट गुडविल. बच्चों गुडविल इज इक्वल टू सभी को मालूम है आपका मेंटेनेबल फ्यूचर प्रॉफिट डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 20,000
एंड बच्चों नंबर ऑफ ईयर्स, आपका बुक में नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ बच्चों दिया 3 ईयर्स, 20,000 इंटू 3 साल का गुडविल वो लोग देना पड़ेगा, मोहन एंड कंपनी को देना पड़ेगा। 20 इंटू 3 बच्चों इज इक्वल टू 60,000। सो द अमाउंट ऑफ गुडविल बच्चों 60,000, द अमाउंट ऑफ द बिजनेस बच्चों 80,000 प्लस देखो 60,000 गुडविल। द पॉइंट टू बी नोटेड, देखो वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, आप देखो बिजनेस का पैसा 80,000 है, दैट मोहन एंड कंपनी इज गोइंग टू परचेज, वेयरएज बच्चों देखो गुडविल लगभग 60,000 हो जाती 3 साल का, अगर 4 साल होता तो ये भी बच्चों 80,000 हो जाता। सो हमें जितना पैसा लगभग देना पड़ रहा है बच्चों आपके कैपिटल के लिए, उससे लगभग इक्वल अमाउंट हमें देना पड़ रहा है गुडविल के लिए। क्लियर बच्चों? तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 बार कैलकुलेशन करनी है, एक सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज, एंड ये आपके दूसरे मैथ से अलग है, एंड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है आपका अभी 3, तो केयरफुली बच्चों इसको देखना सभी। नॉर्मली आप लोग नहीं कर पाओगे अगर ध्यान से नहीं सुनोगे। यहां से आपको सारे मैथ्स को ध्यान से सुनना है। ओके बच्चों, सो मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों यहां पे 2 कैलकुलेशन है, पहले हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट पढ़ लेते हैं सिंपल एवरेज मेथड में, सिंपल एवरेज मेथड ऑफ परचेज ऑफ पास्ट, या अगर हम लिख दे इसको सिंपल एवरेज मेथड, बस लिख देते हैं बच्चों परचेज ऑफ पास्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड। भाई ये जो परचेज ऑफ पास्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड है, यहीं पे बच्चों ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे जो आपका परचेज ऑफ पास्ट एवरेज है, यही बच्चों आपका है सिंपल एवरेज, यही आपका है सिंपल एवरेज। और एक बार आपको मालूम पड़ेगा वेटेड एवरेज, आपको बताऊंगा, आप स्टैटिस्टिक्स याद करो, सिंपल अरिथमेटिक मीन, वेटेड अरिथमेटिक मीन, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन पढ़ा था सबने, तो वही वेटेड, तो वो बातें पढ़ेंगे, पहले सिंपल सीख लें उसके बाद वेटेड। ओके बच्चों, सो मूव टू द क्वेश्चन, लुक एट द क्वेश्चन बच्चों, परचेज ऑफ सिंपल और वेटेड एवरेज, यू कैन राइट हियर परचेज ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, पर मैंने यहां पर लिख दिया था सिंपल एवरेज मेथड। सो बच्चों लुक एट द क्वेश्चन, योर क्वेश्चन इज कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 इयर्स परचेज। बच्चों यहां पे भी क्वेश्चन में लिखा है 3 इयर्स परचेज, आपको 3 इयर्स का गुडविल निकालना है। आउट ऑफ बच्चों 4 इयर्स प्रॉफिट, 4 साल का प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट बच्चों दिया है 4 साल का, 4 साल के प्रॉफिट से आपको 3 साल का बच्चों गुडविल निकालना है, एंड प्रॉफिट्स फॉर द 2013, 14, 15, 16 क्वेश्चन में दिया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ उसके बाद लिखा है ऑन 1/9/2015 मेजर रिपेयर ऑफ प्लांट वाज चार्ज टू रेवेन्यू एट ₹6,000, it is agreed to capitalize it subject to depreciation of 10% per annum on reducing installment method. The closing stock of the 2014 was overvalued by ₹2,400. To cover partners remuneration, a sum of ₹4,800 per annum shall have to be incurred. अभी मैंने जो आपको बोला, आप सभी में से किसी को शायद समझ में आया कि नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन को हमें यहाँ पे पूरा सॉल्व करते हुए समझना है। बच्चों हियर वी हैव गिवन, बच्चों यहाँ पे दिया है बच्चों 4 साल का प्रॉफिट, तो इन 4 साल के प्रॉफिट को मैं इंडिविजुअली मेंशन करता हूं, देखो ध्यान से बच्चों। सॉल्यूशन,
ओके, डायरेक्ट, यहां स्टेप्स नहीं लिख रहा बच्चों। प्रॉफिट, अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, प्रॉफिट आपका यहां लिखता हूं 2013, 2014, 2000 बच्चों 15 एंड फाइनली बच्चों 2016। आप कैसे भी कर सकते हो ऐसे करके भी, पर ये आपको समझने में इजी होगा। 13, 14, 15, 16, ध्यान से देखो। So profit for 2013, then 14, then 15, then 16. Okay students, तो आपका जो प्रॉफिट है 13 का, that is your बच्चों 20,200। 14 में बच्चों वो है 24,800। 15 में बच्चों 20,000 एंड फाइनली बच्चों 16 में 30,000। आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा इतना समझने में। क्लियर बच्चों? 13, 14, 15, 16, दिस इज बच्चों गिवन इन द क्वेश्चन। प्रॉफिट्स बच्चों ये क्वेश्चन में गिवन है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 13, 14, 15 एंड 16 क्वेश्चन में दिया हुआ है। नाउ लुक एट द एडजस्टमेंट बच्चों। अभी आप बोलोगे सर आपने ऐसे क्यों किया, पहले तो ऐसे नहीं किया था। तो यहाँ पे बच्चों हर साल कुछ ना कुछ हमें प्लस माइनस करना, ओवरऑल माइनस या प्लस नहीं करना। जो नॉन रिकरिंग इनकम एक्सपेंसेस वो ओवरऑल नहीं दिया। सो लुक एट द क्वेश्चन बच्चों। ऑन 1/9/2015, यहाँ बच्चों 2015 में सितंबर 1/9 मतलब 1 सितंबर को मेजर रिपेयर ऑफ प्लांट, बच्चों रिपेयर ऑफ प्लांट हुआ था। मेजर रिपेयर बच्चों, मेजर रिपेयर होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेजर रिपेयर, मेरा प्लांट सपोज मेरा बिल्डिंग का वैल्यू है बच्चों 10 लाख रुपए, मैंने एक दीवार को तोड़ के उसे लगाया तो वो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया, तो वो मेजर रिपेयर हुआ। ऐसे ही कलर वाश थोड़ा कर देना, पैच लगा देना, वो रेवेन्यू होगा। पर मेजर रिपेयर बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो एसेट में आना चाहिए। पर उसने क्या किया है, मेजर रिपेयर को बच्चों रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में डाल दिया है। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम लाइन बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड। मेजर रिपेयर इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट विल अपीयर ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बट बच्चों यहां पे उसने उसको रेवेन्यू मतलब P&L अकाउंट के डेबिट में डाल दिया है। एंड यू नो बच्चों डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड, बट ट्रेडिंग P&L अकाउंट जो होता है डेबिट साइड मतलब बच्चों आपका होता है एक्सपेंडिचर साइड। तो रिपेयर जो हुआ था प्लांट का 6,000 रुपीज का, उसने यहां डाल दिया है, तो यहां पे एक्सपेंडिचर बढ़ के आपका प्रॉफिट कम हो गया है। बट इन रियल सेंस में बच्चों इट विल बी एडेड टू द कैपिटल एसेट एंड विल अपीयर ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों क्वेश्चन में गलती हुई है। सो दिस 6,000 बच्चों डेफिनेटली यहां पुट होने की वजह से प्रॉफिट कम हो गया है। सो यू मस्ट ऐड बच्चों, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा। क्या आप लिखोगे, क्या आप लिखोगे? ध्यान से देखो बच्चों, मेरे साथ पहले मैं कर लूं उसके बाद सभी लिखना, तुरंत मत लिखो, थोड़ा प्रॉब्लम होगा आप लोगों को। ऐड मेजर रिपेयर बच्चों, ऐड मैंने लिखा मेजर रिपेयर टू प्लांट। बीइंग बच्चों ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये आपका रेवेन्यू नहीं है, तो आपने इसको रेवेन्यू लेके आपने खर्च बढ़ा दिया है, तो ये ऐड होगा। बीइंग कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर या कैपिटलाइज्ड बच्चों बोल सकते हैं प्रॉफिट, ये प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। तो ये हुआ बच्चों आपका 6,000। सो द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015 बच्चों आपका 20 + 6 दैट इज इक्वल 26,000। फिर से बोल रहा हूं बच्चों, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम के लिए भी एंड आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। It will give you a number of clarity about the revenue, capital expenditure, closing stock, opening stock, so many of things you will learn from this question.
एंड इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन नंबर 1 2। इनफैक्ट इसके बाद भी क्वेश्चन पढ़ोगे उनमें से भी इस क्वेश्चन को सबसे स्पेशल क्वेश्चन बोला जाएगा। आप देखोगे ऐसा क्वेश्चन दोबारा नहीं आएगा। सो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे गलती हुई थी बाय टेकिंग दिस एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू। सो हमने प्रॉफिट कम कर दिया था। सो वी विल हो जाएगा ऐड दिस। क्लियर? तो बच्चों ये ऐड करने से हमारा प्रॉफिट एक्यूरेट हो गया 26,000। एनी डाउट? तो द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015 इज इक्वल 26,000। एनी डाउट बच्चों किसी को? और कुछ होगा? होगा बच्चों। जब ये यहां पे पड़ा मतलब हमने यहां पे पहले इसको रेवेन्यू में डाला था, रेवेन्यू से कैंसिल कर दिया बच्चों। P&L अकाउंट के इसको हमने डेबिट साइड में डाल दिया था 6,000। सो प्रॉफिट हुआ था 20,000। और इस खर्च को अगर उठा देते तो ये बच्चों 26 हो जाता। 26 ये 26 हो गया। एंड ये बच्चों 6,000 हम कहां लिखते? इसको लिखते हम एसेट साइड में, तो वहां एसेट बढ़ जाता। एंड इफ यू हैव एनी एसेट बच्चों आपका डेप्रिसिएशन भी होता होगा। सो लुक एट द क्वेश्चन अगेन बच्चों। इट इज एग्रीड टू कैपिटलाइज इट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। तो इसको तो हमने कैपिटलाइज पहले कर दिया एंड उसके बाद बच्चों डेप्रिसिएशन भी होगा। डेप्रिसिएशन जो होगा वो तो एसेट में सिर्फ नहीं आएगा, वो तो एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन लेकिन बच्चों यहां पे आएगा आपका वो 6,000 यहां नहीं आएगा पर इस 6,000 का डेप्रिसिएशन आएगा। एंड बच्चों डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% लिखा है, तो इस 6,000 का डेप्रिसिएशन बच्चों 10% ये तो प्रॉफिट को कम करेगा। सो माइनस बच्चों डेप्रिसिएशन एट द रेट आपका 10% ऑन ₹6,000 सॉरी 6,000। फिर से बच्चों ध्यान से देखो ये कब हुआ था 1/9/2015 को 1/9। सो दिस इज द प्रॉफिट फॉर 13 14 15 16। सो 13 14 15 मतलब हर साल बच्चों आपका एंड होता है 31st 12 को 31st 12 को 31st 12 ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है अभी देखो फिर बाद में लिखना सारे 31st 12 को हुए होंगे। सो बच्चों 1/9 को एसेट खरीदा था रिपेयर हुआ था 1/9 को खरीदा नहीं था रिपेयर हुआ था। सो 9 से बच्चों 9 month 10 month 11 month 12 month। सो डेप्रिसिएशन शैल बी कैलकुलेटेड फॉर ए पीरियड ऑफ बच्चों 4 month फॉर ए पीरियड ऑफ 4 month। सो 10% ऑन 6,000 into बच्चों 4 month that is 4/12। सो 600 into 4/12 is equal to बच्चों आपका हो रहा है 200। सो 200 बच्चों डेप्रिसिएशन दैट मस्ट बी डिडक्टेड। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015 यू कैन लुक द क्वेश्चन में लिखा है 20,000 ये 6,000 आपका अभी ऐड हुआ एंड बच्चों 200 आपका डेप्रिसिएशन हुआ। तो फाइनली हमको मालूम पड़ा प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015 कितना हुआ। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों मूव टू द क्वेश्चन अगेन। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2014 यहां पे बच्चों 14 का क्लोजिंग स्टॉक was overvalued by ₹2,400। बच्चों क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2014 सपोज बच्चों यहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट प्लस P&L अकाउंट बनाते हैं सबको मालूम है। यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ है बच्चों यहाँ पे आपका 2,400 बढ़ गया है ओवरवैल्यूड बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ गया है कहां पे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक बच्चों इनकम साइड में आता है क्रेडिट साइड ये डेबिट साइड। थोड़ा सा भी अपने दिमाग को इधर उधर मत करना अदरवाइज कोई इसको नहीं समझ पाएगा। मैं आपको पूरे क्लैरिफिकेशन के साथ समझा रहा हूं फिर भी अगर नहीं समझोगे तो नेक्स्ट मूव में नहीं समझोगे। पहले 2015 के एडजस्टमेंट को सॉल्व किया। नाउ यहां मैंने गैप क्यों छोड़ा था क्यों आपको लिखने के लिए मना किया था क्वेश्चन ही बच्चों वैसे दिया है पहले 15 के बारे में बोल रहा है फिर 14 के बारे में बोल रहा है। तो क्वेश्चन में पहले क्या बोलना चाहिए 14 देन 15 तो क्वेश्चन ही उल्टा है। तो मुझे मालूम था क्वेश्चन उल्टा है इसलिए मैंने क्या यहां गैप छोड़ दिया।
सो बच्चों 14 में क्या हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ जो लिखते हैं इनकम चीज है, ये इनकम है, ये बढ़ गया है, तो आपका यहाँ का प्रॉफिट बच्चों 2400 बढ़ गया होगा। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू मतलब प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो यहाँ पे आपको माइनस करना है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बच्चों कितना माइनस करना है, 2400 फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ 2014। हो गया बच्चों, अब आप लोग खुश हो जाएंगे, शायद खत्म हो गया आपको लगेगा। ओके, लास्ट में लिखा है बच्चों टू कवर पार्टनर्स रेम्युनरेशन ए सम ऑफ रुपीज 4800 पर एनम। हर साल बच्चों पार्टनर्स को रेम्युनरेशन मिलता है 4800, उनका एग्रीमेंट है, तो हम लास्ट में माइनस कर सकते हैं, नहीं तो यहां पे माइनस कर सकते हैं। यहां मैं कर देता हूं, लास्ट में जो करूं यही कर देता हूं। रेम्युनरेशन बच्चों ऑफ पार्टनर्स, हर पार्टनर का बच्चों रेम्युनरेशन कितना है आपका 4800, तो आप इसको यहां लिख देना 4800 आपका 13 का, देन 14 का बच्चों 4800, देन 15 का बच्चों 4800, देन बच्चों 16 का भी आपका होगा 4800। क्लियर हो गया। चारों साल मैंने यहीं पे माइनस कर दिया, दोबारा माइनस करने की और जरूरत नहीं है। अब इतना माइनस कर दिया, इसको क्यों छोड़ेंगे, इसको माइनस कर दिया। होप सभी को समझ में आया, हो गया। अब आपको लग रहा है सब खत्म हो गया, अगर किसी के मन में कुछ आ रहा है तो पूछो। खत्म हो गया। वी गेट द बच्चों प्रॉफिट ऑफ 13, 14, 15, 16, और कुछ है कि नहीं बोलो, बहुत कुछ है यहां पे, और भी बहुत कुछ करना है। क्या करना है बच्चों, ध्यान से, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक बच्चों बढ़ गया था, तो प्रॉफिट बढ़ गया था, माइनस कर दिया। यही क्लोजिंग स्टॉक बच्चों नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर होगा, ये ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ गया है अगले साल बच्चों 15 का ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया होगा, मतलब 15 में बच्चों ओपनिंग स्टॉक, ये 14 का था, 15 में बच्चों ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया होगा यहां डेबिट साइड, तो 15 का खर्च बढ़ गया होगा, प्रॉफिट कम हो गया होगा। बच्चों अगर 2014 में क्लोजिंग स्टॉक बढ़ के इनकम बढ़ गया तो इनकम को हमने कम कर दिया। ये क्लोजिंग स्टॉक बच्चों 14 का 15 में ट्रांसफर हो गया, ये सब ट्रांसफर होते हैं लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग स्टॉक। तो 15 में बच्चों आपका क्या होगा, वो क्लोजिंग स्टॉक आके यहाँ पे आपका बढ़ जाएगा अगर ओपनिंग स्टॉक, तो वो आपका खर्च बढ़ गया, मतलब प्रॉफिट यहाँ कम हो गया। तो यहाँ 15 में आपको प्रॉफिट बढ़ाना है, तो बच्चों यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ बच्चों माइनस हो रहा है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है माइनस प्लस, यहाँ पे लिखना है प्लस 2400। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे बच्चों प्रॉफिट को कम कर देते, बढ़ा देता है। आपका 14 में प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट कम कर दिया, यही जाके अगले साल डेबिट साइड में आएगा तो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, एक्सपेंडिचर बढ़ने से आपका प्रॉफिट कम हो गया, तो मैंने प्रॉफिट को बढ़ाया। तो ये दोनों ट्रीटमेंट हुआ, क्लियर। अब बच्चों यहां पे जो एसेट्स थी ये 6000, इसको पहले हमने नहीं लिखा था, अब लिखा एंड डेप्रिसिएशन चार्ज किया। ये एसेट बच्चों 2016 में भी होगा, तब उस एसेट का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 6000 माइनस 200 इज इक्वल 5800। बच्चों यहां पे डेप्रिसिएशन पड़ा तो यहां पे भी डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन जो 10% हमने माइनस किया यहां पे भी माइनस होगा, तो यहां पे भी 6000 का 10% माइनस मतलब 600 होगा। पर क्वेश्चन में बच्चों यहां लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ, देखो ध्यान से, रेड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, डिमिनिशिंग मेथड बच्चों, मतलब 6000 में से 200 गया, पहले तो 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन था, यहां का फुल ईयर का होगा, तो डिमिनिशिंग मेथड में बच्चों आपका एसेट्स वैल्यू है 4800। सो बच्चों डेप्रिसिएशन आपने यहां लिखा 200, ये हुआ आपका 2015 के लिए, 16 के लिए बच्चों होगा आपका 580 माइनस होगा ये, दैट इज बच्चों में लिख देता हूं आप लोगों के लिए 10% ऑन बच्चों 6000 माइनस 200, क्योंकि आपका पिछले साल 200 हुआ था, तो दैट इज बच्चों 5800 हो रहा है। 5800 का 10% पूरा फुल ईयर का बच्चों 580। नाउ लुक एट द क्वेश्चन बच्चों, पूरा केयरफुली देखो,
पूरा बिगनिंग से लेके एंड तक क्वेश्चन को पूरा केयरफुली देखो। आपको क्या देखने को मिलता है? प्रॉफिट फॉर द ईयर बच्चों 2013 आपका 20,200 था ओनली, इसमें आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं था। एंड में जाके बच्चों रेम्युनरेशन था, ओनली रेम्युनरेशन। एंड में जाके बस सिर्फ मैंने यहाँ पे रेम्युनरेशन लिखा है। हर साल आपका रेम्युनरेशन बच्चों हो रहा है 4,800। ओके, देन बच्चों लुक एट द 2014 की तरफ ध्यान से देखो। 14 में बच्चों आपका प्रॉफिट था 24,800। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हुआ था 2,400, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया था। प्रॉफिट को हमने कम किया एंड देन फाइनली नीचे आओगे बच्चों तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका रेम्युनरेशन था बच्चों 4,800। बच्चों ये यहाँ भी 4,800, इसको सीधा लिख देता हूं। दिस इज ऑल्सो बच्चों 4,800 एंड फाइनली बच्चों यहाँ पे माइनस होगा आपका 4,800। देन लुक एट द बच्चों 2015, देयर ऑल्सो बच्चों प्रॉफिट इज गिवन 20,000। देन बच्चों आपका वो जो अंडर ओवर वैल्यूएशन हुआ था यहाँ पे बच्चों ओपनिंग स्टॉक बढ़ के हमारा अभी लॉस हुआ होगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट को बढ़ाया। देन 6,000 आपका एसेट ऐड किया एंड जेन्युइनली डेप्रिसिएशन माइनस किया एंड फाइनली बच्चों आपका 4,800 माइनस किया फॉर रेम्युनरेशन। एंड बच्चों 16 में आपका 30,000, यहाँ कुछ माइनस नहीं होना था पर यहाँ पे डेप्रिसिएशन हुआ था, एसेट वैल्यू कम के 5,800 हो गया। इसको फिर से आपको डेप्रिसिएट करना है बच्चों 10% तो 580 एंड बच्चों फाइनली आपका रेम्युनरेशन। सो नाउ हम उस स्टेज पे हैं वेयर हमको पूरा इंफॉर्मेशन मालूम है अबाउट द प्रॉफिट ऑफ 13, 14, 15 एंड 16। सो वो बच्चों व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ 13 बच्चों? 0 - 0 0, 0 - 0 0, 2 - 8 तो 12 - 8 बच्चों इज इक्वल टू 4। यहाँ बच्चों 9, 9 - 4 इज इक्वल टू 5, 15,400 द प्रॉफिट ऑफ 2013। सिमिलरली बच्चों 2014 का कितना प्रॉफिट है देखो 24, ये 4, 28, 29,600, 29,600 माइनस बच्चों 2,400 इज इक्वल टू 27,200। तो प्रॉफिट यहां हो रहा है 27,200। देन बच्चों यहां पे 20, ये 2,000, 22,000, ये 6,000, 28,000, 28,000 बच्चों आपका हो रहा है 28,400। 20 बच्चों एक मिनट ध्यान से, ये रेम्युनरेशन माइनस होगा ना? हाँ माइनस किया मैंने, यहाँ पे 24 यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया। 24 बच्चों आपका हुआ था, ध्यान से 24 + 4 28,000, ठीक है 29,600 - 2,400, ठीक है बच्चों 27,200, ठीक है ओके ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे 20 + 2 22, 6 बच्चों ये हो रहा है 28,000 एंड 28,000, 20, 22, 28,400 माइनस आपको करना है ये 4,800 एंड बचे ये 200, मतलब 5,000 माइनस करना है। सो दिस विल बी योर 23,400। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015 23,500 एंड फाइनली बचे यहाँ पे 30,000 में से माइनस करना आपको 48 और ये 5 बच्चों 5,380, 30,000 5,380, 0 2 6 4 2 24,620। The profit for the 2,000 बच्चों 16 का 24,620। क्लियर बच्चों? सो हमें 4 साल का प्रॉफिट मिल गया। नाउ यू कैन कैलकुलेट बच्चों। ओके बच्चों, तो यहाँ हमें पहला प्रॉफिट मिला 15,400, 14 का मिला बच्चों 27,200। बच्चों थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे बच्चों मैंने से प्लस कर दिया इसको 24,800
माइनस 2400 बच्चों ये माइनस है 4800 ये 2 4 2 6 7000 बच्चों 200 17,000 बच्चों ये दिस इज द प्रॉफिट ऑफ 17,600। यहाँ प्रॉफिट थोड़ा गलत हुआ कैलकुलेशन में, आप लोग तो ठीक करोगे कैलकुलेटर मार के। ओके बच्चों, देन आपको समझाने के लिए मुझे ऐसे सब लिखना पड़ा, नहीं तो हम एक एक करके भी लिख सकते थे। सो नाउ दिस इज द प्रॉफिट ऑफ आपका 13 14 15 एंड 16। अब चारों प्रॉफिट को बच्चों आप ऐड कर दोगे डिवाइड बाय बच्चों 4, दैट इज बच्चों आपका हो गया एवरेज प्रॉफिट। एंड आपको गुडविल निकालना है कितने साल का? 3 इयर्स का। अब आप इन चारों प्रॉफिट को ऐड कर दोगे, तो नाउ बच्चों हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? नाउ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू बच्चों 15,400 प्लस 17,600 प्लस 23,400 प्लस बच्चों 24,600 डिवाइड बाय बच्चों 4 इयर्स, ये रुपीस में तो कितना हो रहा है देखो बच्चों 6 for 10 16 for 20 0 2 81,000 by बच्चों 4 is equal to 4 to the 8 0 10 बच्चों 4 to the 8 2 0 4 5 20 0 बच्चों ये 620 है 620, so this will be your बच्चों 81,020, तो यहां पे 255 20,255 बच्चों दिस इज द बच्चों एवरेज प्रॉफिट। एंड नाउ फाइनली बच्चों यू नीड टू कैलकुलेट गुडविल। बच्चों लास्ट के गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट बच्चों 20,255 इनटू नंबर ऑफ इयर्स। क्वेश्चन में लिखा है बच्चों 3 इयर्स इज इक्वल टू बच्चों into 3 into 5 15 5 3 5 15 plus 16 7 0 16 60,765। look at the बच्चों आंसर कितना है आपका? आंसर देखो ध्यान से, अंडर सिंपल अरिथमेटिक में बच्चों आपका आंसर क्या है? पहले लिखा है वेटेड में, फिर सिंपल है बच्चों 60,765 आंसर हो गया हमारा। सो केयरफुली बच्चों सभी इस क्वेश्चन को देखिए पूरा कंप्लीट एंड सॉल्व करें। पूरी तरह से क्वेश्चन को देखो, या बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। सभी स्टूडेंट्स बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन सॉल्व करने के बाद अगर डाउट रहे किसी को, बेसिक चीजें बच्चों आपको देखना है यहाँ पे। ओवर वैल्यूएशन माइनस 2,400 प्लस 2,400 एंड मेजर रिपेयर बच्चों यहाँ पे 6,008 हुआ, डेप्रिसिएशन माइनस हुआ एंड बच्चों वही डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर बच्चों फिर 580 करके माइनस हुआ। एंड ये तो सिंपल बच्चों हर साल माइनस होना है। क्लियर बच्चों? सो दिस इज ऑल अबाउट द बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अंडर बच्चों परचेज ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। होप सभी को समझ में आया। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू बच्चों होमवर्क में बच्चों आपको पहला 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है एक बार, एंड इस क्वेश्चन को बच्चों 2 टाइम्स प्रैक्टिस करना है, मतलब आपको 4 सॉल्व करने हैं। सो गुडविल का एक्सरसाइज में आपको जो क्वेश्चन दिया हूं उसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 फेयर कॉपी में प्लस 3 नंबर को बच्चों फेयर कॉपी में करो, या एक बार फेयर कॉपी में एक बार प्रैक्टिस कॉपी में करना है, 2 बार। सो दिस इज योर होमवर्क एंड मुझे कल होमवर्क सभी भेजोगे ग्रुप में। सो बच्चों ख्याल रखो, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। कल क्लास आने से पहले फिर से सारे फॉर्मूला को पढ़ के आना
तभी इसको कर पाओगे, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में और डिफिकल्ट प्रॉब्लम आएंगे, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। सो तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, ऑल द बेस्ट।